Fine. So we are going to start with chemical thermodynamics. Now, thermodynamics is an important part for chemistry as well as physics. So यहाँ पर chemistry के related जो thermodynamics है, that will be called chemical thermodynamics. Physics के लिए it will be physical thermodynamics, जहाँ पर थोड़े बहुत terms and sign conventions जो है वो differ करेंगे. वो भी क्या differ करेंगे? As and when हम proceed करेंगे, we will discuss that also. Now, first of all, the word thermodynamics, if I just break down into two parts. So, thermo say we can relate heat, thermal, and dynamic is something related to the change. So, thermodynamics as a word refers to the heat changes. And heat changes matlab, it is a change associated with the energy. So before we proceed with the heat changes concept, tell me, how do you define energy in the simplest way? बच्चे वाला definition, energy is defined as the capacity to do work of the capacity to work. perfect. Energy is simply defined as the capacity to do work. For example, let's say I have two similar balls in hand, and if I am raising it to two different heights, or उन दो different heights से, let's say I am releasing the ball. Now, in which case the energy is going to be higher. And why? I'm having two similar balls. I have raised it to different heights and I have just released them. तो कौन से केस में ज्यादा काम होगा, ज्यादा वर्क डन होगा? One which is higher. One which is higher, because it is at a greater height and it is at a greater potential energy. तो obviously जो ज्यादा height पे है उसकी capacity to do work will be greater. ठीक है? So now when we talk about application areas of thermodynamics, thermodynamics is associated with various day-to-day life applications. If you talk about power plants, in that the thermal energy is getting converted into electrical energy. Aircraft, spacecraft या cars में जो chemical energy है due to burning of fuels, that gets converted into electrical energy. अपना ह्यूमन बॉडी में भी थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो स्वेटिंग होता है जहां पर अपना बॉडी कूल होता है बाय गिविंग आउट द हीट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, दैट इज आल्सो थर्मोडायनामिक रिलेटेड. फिर एयर कंडीशनर्स या फिर रेफ्रिजरेटर्स में जो कूलिंग सिस्टम है, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द थर्मोडायनामिक्स, वेयर द डिसिपेशन ऑफ हीट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है? वैसे ही विंड टर्बाइन, सोलर हॉट वाटर सिस्टम, बोट्स में many other applications we will find thermodynamics playing a very important role. So in application से ये तो समझ में आ रहा है that thermodynamics is related to the interconversions between different forms of energy. It's related to interconversions between different forms of energy. So thermodynamics in short is a study of energy and matter and the interconversions between them. Clear? Let's see the definition. So thermodynamics is the branch of science which deals with the different forms of energy, the quantitative relationship between them, meaning their interconversions, and the energy changes that occur in physical and chemical processes. And it is based on three fundamental laws of thermodynamics which we are going to study, and they are first law, second law and third law of thermodynamics. In fact इसके अलावा zeroth law भी है, but वो physics related ज्यादा important है, which is related to the measurement of temperature. Chemistry के लिए three of the laws are going to be very important, first, second and third. Now, what is the importance or application of thermodynamics with respect to the physical and chemical processes in chemistry? So very importantly, thermodynamics provides information regarding the feasibility of a chemical reaction. मतलब क्या? Let's say we have one chemical reaction wherein A and B
are reacting to give the product C. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट सी बनाना है, उसके लिए आपने पूरा इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, ठीक है, बहुत सारा खर्चा कर दिया। अब यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू कंबाइन ए एंड बी एंड प्रोड्यूस सी विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट वेदर दैट रिएक्शन विल वर्क और नॉट। ठीक है, तो आपने सोचा होगा चलो हाँ काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये बन करके कुछ और करेंगे। ऐसा आइडियली होता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिफोर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री एंड द केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू द production of XYZ material, you have to first check whether that particular reaction will work or not. क्या वो reaction feasible है, possible है कि नहीं। ठीक है, तो that feasibility is explained by thermodynamics. It tells whether a particular reaction is possible, spontaneous or not under the given set of conditions. ठीक है, तो यू विल ऑलवेज फर्स्ट चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनफैक्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, यू विल चेक कि क्या वो रिएक्शन काम करेगा कि नहीं, मतलब यू विल चेक द फिजिबिलिटी। सो हियर थर्मोडायनामिक्स कम्स इनटू पिक्चर। Secondly, you will also check the extent to which the reaction would happen. And to know the extent of reaction, we have the concept of equilibrium, where Kc or Kp or the equilibrium constant comes into picture. Yes or no? And thirdly, you will also understand the rate at which the reaction is taking place. अगर जो रिएक्शन से आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो बहुत स्लो है, तो ऑब्वियसली कंपनी को इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। फॉर efficient utilization of the raw materials, obviously the reaction which you are performing should have a greater rate. It should be very fast. ठीक है, तो यहां पर kinetics comes into picture. So feasibility is understood by chemical thermodynamics. Extent of the reaction is understood by chemical equilibrium, जिसका फंडा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, and rate of reaction is understood by chemical kinetics, जो हम आगे डिस्कस करेंगे in a new chapter. मतलब in short, for any reaction, three of these parameters are very important and vital to study before you actually perform any chemical reaction. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट feasibility of the reaction, and it tells the direction in which the reaction tends to occur. In fact, if you remember, thermodynamics and chemical equilibrium were related by some mathematical relation. Can you recollect that? थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंडर मैंने वो बताया भी था रिसेंटली। यस, एनीवन? delta G naught is equal to minus RT ln of K equilibrium. So through the thermodynamic delta G naught parameter, we are able to equate the equilibrium constant. ठीक है, मतलब इसके थ्रू वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन टेंड्स टू अकर। कैसे, वो ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट समझेगा तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, so thermodynamics is simply related with the study of energy and their interconversions that mainly occur in the physical and chemical processes. Importantly, it gives you the understanding about feasibility of a chemical reaction. ठीक है, now when we talk about interconversions of energy, इसका एक simple example देता हूं। We know that the water which is present in the dam can be used to produce hydroelectricity. So initially, the water which is still in the dam is having stored amount of energy called potential energy. If that water is allowed to fall down, it will be converted into kinetic energy. That water, if it is used to drive the turbines, then it is converted into rotational energy. And that rotational energy is later on converted into electrical energy. मतलब यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया,
and this is related with the interconversions of energy. और thermodynamics में इसी interconversions के बारे में हम समझेंगे, but mainly for the physical or the chemical processes. Now, to understand thermodynamics, we need to understand some basic terms. उसके पहले one small topic, that is limitations. Limitations क्या है? It gives no information regarding the rates at which physical and chemical processes occur, because वो information आपको kinetics देता है. About the rate, it's given by kinetics. It does not tell about the mechanism of the process, as it is concerned only with the initial and the final state. मतलब mechanism जो हमने organic chemistry में भी किया है about the intermediates का study, that also is understood by the kinetics of the reaction. तो ये thermodynamics का part नहीं है. ठीक है, अब ये limitation क्यों कहलाता है? Let's understand. Tell me, does the carbon burn with oxygen? Is this reaction feasible? हाँ या ना? I want the response from you, please. This is a very important chapter and the response is very much required. Is the burning of carbon feasible or not? It is. Yes, sir. It is. We know that it would give you carbon dioxide. Okay. But if I talk about diamond, it's made up of carbon only. So does the diamond burn with oxygen and actually produce carbon dioxide? No. Oh, No. Diamonds में the carbon atoms are joined to other carbon atoms by 4 single covalent bonds and it's sp3 hybridized tetrahedral structure, and we know that diamond is a very very hard substance. ठीक है, लेकिन बना तो कार्बन से ही है. मतलब theoretically अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो it should be feasible. Theoretically it should be feasible, but kinetically it is not, because अगर diamond burn भी होता है so it would take years and years for the carbon to get converted into carbon dioxide. ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से feasible है, but kinetics के हिसाब से नहीं. Similarly, hydrogen and oxygen, does it produce water? हाँ कि नहीं? Yes. yes, sir. Yes, it does. Yes, but it does happen under some specific conditions of temperature and pressure. बराबर, ऐसा तो नहीं है कि अपने आसपास बहुत सारा ऑक्सीजन तो अवेलेबल है. ठीक है, आप एक बॉटल में हाइड्रोजन लेकर घूम रहे हो. ठीक है, आपको पानी पीने का मन हुआ, आपने बॉटल को खोल दिया, हाइड्रोजन अंदर ऑक्सीजन बाहर, आओ कंबाइन हो जाओ, पानी बन गया, पी लिया, खत्म हो गया बात. ऐसा होता है क्या? नहीं. मतलब ये रिएक्शन भी थर्मोडायनामिकली फीजिबल है, बट काइनेटिकली यहां पर भी आपको सर्टेन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो फॉर अ रिएक्शन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ऑल 3 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी एक एस्पेक्ट को लेकर आप रिएक्शन को नहीं कर सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Next, it is concerned with properties of macroscopic systems involving a large number of entities like atoms, molecules और ions. इसका मतलब क्या? मान लो मेरे पास एक बीकर है जिसमें वाटर है, and this water is at a temperature of let's say 50 degree Celsius. अब मैंने इसको हीट किया and I want the temperature to be raised to 80 degree Celsius. ठीक है, तो हीट किया 50 डिग्री से, मैंने टेम्परेचर नोट किया 60, 70 और 80 हो गया, हीटिंग स्टॉप कर दिया, एंड नाउ द फाइनल टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द हीटिंग इफ आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड how much energy was absorbed by each and every molecule, how much was the kinetic energy associated with the molecules of water? क्या ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल सकती है? हाँ या ना? Yes, sir. We can. And how?
ईच मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, कैन वी गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन? हाँ या ना? हाँ. हाँ। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें या एटॉमिक लेवल की बात करें या आयोनिक लेवल पे बात करें, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। अगर ये 1 मोल का पानी है, 1 मोल, तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाउ मेनी? 6 × 10⁻23। मतलब आप इतने मॉलिक्यूल्स का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आरुषि? हाँ, नहीं निकाल सकते हो। सो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दैट इज व्हाई हम जो थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, वी कंसिडर द ओवरऑल सिस्टम इन बल्क। मतलब इनिशियल 50 था, फाइनल 80 है, उसके बीच में यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, कितनी एनर्जी से मूव कर रहा है, क्या उसका काइनेटिक एनर्जी है, क्या वेलोसिटी है, उसके बारे में वी डोंट हैव टू वरी। ठीक है, दैट इज वाई यहां पर लिखा है, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, मतलब सिस्टम इन बल्क। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एक एक मॉलिक्यूल के लिए हम बात नहीं करते। इनफैक्ट एक सेपरेट ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बात करता है, लेकिन वो अपने सिलेबस के लिए नहीं है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। And then it does not tell anything regarding the rate या speed of a physical or a chemical change. First और last point basically same ही है। In short, thermodynamics speed के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, और वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, मैकेनिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है। Fine. So now let's understand the thermodynamics starting with the basic concepts and the definition. So if you observe this image, there is some chemical reaction which is happening in this conical flask. So जो chemical reaction हो रहा है जिसमें thermodynamic parameters या variables change हो सकते हैं, like pressure, temperature, volume, moles, तो वो वाला part of the reaction is basically considered as the system. Thermodynamics में system is that part which is directly under observation. हमारा ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन का हो रहा है, तो ये सिस्टम है। सिस्टम के बाहर सब कुछ जो भी उसके आजू बाजू है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। अब सिस्टम कितना है उसको डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर अ बाउंड्री। तो यहां पर इस पर्टिकुलर इमेज में द कोनिकल फ्लास्क, द ग्लास कोनिकल फ्लास्क itself is the boundary which is separating the system and the surroundings. ठीक है, और ये पूरा पार्ट जो है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेग वर्ड बट इट्स कॉल्ड एज यूनिवर्स। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, द होल इज द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, इसे इसलिए पूरे पार्ट को हम यूनिवर्स बोलते हैं। लेकिन जो पार्ट ऑब्जर्वेशन में है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, जो उसके बाहर का पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, एंड जो उसको सेपरेट करता है दैट सिंपली कॉल्ड एज बाउंड्री। ठीक है, तो नाउ बाउंड्री जो है ना वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। फर्स्टली इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल, जैसे इस इमेज में ये जो बाउंड्री है वो रिजिड है। ठीक है, लेकिन अगर बलून को अंदर गैसियस सिस्टम, अंदर गैस भरा हुआ है, तो वो भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया, और उसका जो बलून का circumference है दैट इज बेसिकली द बाउंड्री which will be flexible in this case.
रबर का रहता है, राइट। सेकेंडली, द बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। यहां पर आप बाउंड्री देख सकते हो, ऑब्वियसली ये रियल भी है, रिजिड भी है। लेकिन लेट्स से एक कैंप फायर, बॉन फायर आप परफॉर्म कर रहे हो जिसमें यू आर बर्निंग द वुड। तो द बर्निंग ऑफ द वुड इज अ सिस्टम एंड बाकी का पार्ट पूरा आपका सराउंडिंग है। इज देयर एनी बाउंड्री ओवर हियर? यहां पर कोई बाउंड्री है क्या? नहीं, तो ये वाला बाउंड्री इमेजिनरी हो गया, ठीक है। तीसरा, द बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वो होगा जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, और नॉन कंडक्टिंग जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे ये। तो अ कंडक्टिंग वॉल और अ कंडक्टिंग बाउंड्री इज डायएथर्मिक। डायएथर्मिक या डायाथर्मिक, जैसे भी आप स्पेल करो, ठीक है। तो डायाथर्मिक वॉल इज बेसिकली अ कंडक्टिंग वॉल जहां पर हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जहां पर नहीं होता है उसको ए डायाबैटिक वॉल बोलते हैं। इट्स ए डायाबैटिक। मतलब बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी, डायाथर्मिक और ए डायाबैटिक। अब having understood the system, let's understand the types of system. अब types of system समझने के लिए let's see the diagram. So let's say you have a hot tea placed in a cup. अगर ये hot tea जो कप में प्लेस किया गया है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए for some time, what will happen? ठंडा हो जाएगा। अब ये ठंडा क्यों हुआ? Because the heat is lost from the system into the surroundings, due to which the tea has become cold, ठीक है। अच्छा, now tell me, will the matter यानी amount of tea in the cup reduce? Will it change No. because of this? No. Ideally no, but यहाँ पर जब इवेपोरेशन हो रहा है तो चाय के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वही तो भाप बन के जा रहा है ना, तो वो भी तो मैटर हुआ। वो किसका मैटर है? चाय का ही है। तो will there be a change in the matter? The answer is yes. Got it? So this type of system where there is exchange of energy as well as matter with the system allowed is called an open system. ऐसा सिस्टम जहां पर हीट भी ट्रांसफर होता है, मास भी ट्रांसफर होता है, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। मतलब यहां पर द चेंज इन द एनर्जी will be non-zero and the change in the mass will also be non-zero. बट इसी हॉट टी को अगर मैं एक सॉसर से कवर कर दूं या प्लेट से कवर कर दूं, अब बोलो क्या ट्रांसफर हो रहा है? The heat will transfer with the matter one. द मैटर इज कंजर्व्ड ओवर हियर बिकॉज हमने वो जो हीट है वो तो कंडक्टिंग वॉल के थ्रू बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मैटर है वो कंजर्व्ड हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जहां पर हीट ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है, इट्स कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। मतलब यहां पर द एनर्जी ट्रांसफर विल हैपन बट द मास का चेंज विल बी इक्वल टू जीरो। अब इसी चाय के कंटेंट्स को आप एक थर्मोस फ्लास्क में डाल दो। थर्मोस फ्लास्क का काम क्या है? टू मेंटेन दैट हॉटनेस, बराबर। तो यहां पर ये वाला जो वॉल है ये कैसा वॉल होगा? थर्मोस फ्लास्क में कौन से टाइप का वॉल होगा? Closed system. ना ना ना, वॉल कौन से टाइप का होगा? डायाथर्मिक या ए डायाबेटिक? A diabetic. Diabetic. ए डायाबेटिक इंसुलेटेड फ्लास्क होता है ये। मतलब यहाँ पर मैटर भी कंजर्व्ड है और एनर्जी भी कंजर्व्ड है। देयर इज नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, सच सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर एनर्जी का चेंज जीरो, मास का चेंज भी जीरो। अंडरस्टूड? ठीक है। अब डे टू डे लाइफ एग्जांपल में अपना जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज एन ओपन सिस्टम, बिकॉज अपना ह्यूमन बॉडी अंदर का जो एनर्जी है बॉडी को कूल करने के लिए बाहर डिसिपेट करता है, एंड दैट इज बेसिकली आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। मतलब जो वाटर है वो अपना स्वेट बन के आ रहा है।
मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में भी हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है। देन अपने जो मोबाइल फोन्स है या लैपटॉप्स है, ठीक है, उसमें हीट का डिसिपेशन तो होता है, बराबर। जो हीट होता है वो डिसिपेट होता है, लेकिन जो उसके अंदर के कंटेंट्स है, जो जिससे बना हुआ है द आइसेस एंड चिप्स, वो ऑब्वियसली कंजर्व्ड रहता है। मतलब दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। और जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं, मतलब वी कंसिडर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। Universe is an example of isolated system. So these are some other important examples of the open, closed, and isolated system. Clear? Yes, sir. Next, we have the types of system based on composition. That is homogeneous and heterogeneous. तो सैंड को अगर पानी में डाला तो सैंड यहाँ पर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जो सेटल डाउन एट द बॉटम। तो यहाँ पर दो अलग अलग फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसे टाइप का मिक्सचर या सिस्टम को हेट्रोजेनस बोलेंगे। लेकिन अगर सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व होता है और एक ही सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे टाइप का सिस्टम हो जाएगा होमोजेनस सिस्टम। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, macroscopic properties and its types. So when we talk about macroscopic properties, these are those properties which could be measured for a bulk system. मतलब मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, इट इज हैविंग सम 2 moles ऑफ वाटर, यानी 36 ग्राम्स। तो एक बड़ा सा बल्क सिस्टम है। नाउ इस पर्टिकुलर सिस्टम में आई कैन मेजर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, देन इट्स एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं मेजर कर सकता हूँ। सो सच प्रॉपर्टीज which can be measured for a thermodynamic macroscopic system are called macroscopic properties. अब ये प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है। समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। थर्मोडायनामिक्स आपको समझना है तो एग्जांपल्स को याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा लाइफ टाइम। ध्यान दो। Let's say I have carbon which is burnt in oxygen, giving you carbon dioxide. So the solid form of carbon burns in oxygen to give you gaseous CO2. Now we know that this burning is an exothermic reaction. मतलब the delta H for this reaction is minus. And let's say magnitude wise, it's minus x kilojoule per mole. मतलब कि जब 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन बर्न होता है तो x किलोजूल की हीट रिलीज होती है। अब मान लो मैंने 12 ग्राम की जगह 24 ग्राम कार्बन को हीट किया, will the energy released will remain x or it will change? बारह ग्राम के लिए x किलोजूल है, तो अगर मैंने 24 ग्राम का कार्बन लिया 2 moles, will the heat release remain same? Yes or no? Sapna, you can just remove those students who are not having the camera angle proper, because most of the students are showing only their heads and I'm not interested in that. Just remove them without warning. It's okay even if I have 2-3 students in the class. Hello? Yes, sir. Okay. So मेरा क्वेश्चन ये है कि 12 ग्राम्स की जगह 24 ग्राम्स किया तो will this delta H change? No. This X is the amount of energy per mole, यानी ये 12 ग्राम के लिए था। अगर मैं 24 ग्राम के लिए बात करूं तो ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 36 ग्राम के लिए बात करूं ये 3x हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस डेल्टा H का मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन विच इज बीइंग बर्न्ड। So those properties which are dependent on the amount of matter are called extensive properties.
thermodynamic properties which are dependent on the amount of matter present in the system are called extensive properties. Versus अगर मान लो मैं वाटर की बात करता हूं, we know that the density is 1 gram per ml. Now, if I have 1 mole of water and its density is 1 gram per ml, changing it to 2 moles or 3 moles, will the density change? No. नो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which are independent on the amount of matter. I say intensive, I say independent. Extensive are those which are dependent. ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल में मास, वॉल्यूम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी जो आगे हम पढ़ेंगे, ये सारे एक्सटेंसिव होते हैं। एनर्जी मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, द फेमस इक्वेशन सेज दैट। बट डेंसिटी हो गया या फिर विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, ये समझने के लिए जस्ट ये थॉट प्रोसेस लगाओ कि अगर मैं इस अमाउंट को डबल कर दूं तो क्या वो प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे 1 मोल वाटर को 2 मोल्स कर दिया तो उसका मास चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो एक्सटेंसिव है, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो ये इंटेंसिव हो गई। दैट इज हाउ यू कैन एनालाइज। अंडरस्टूड? Yes, So sir. mass, volume, different forms of energy are all extensive properties. Intensive में commonly density आ गया, viscosity, temperature, pressure, boiling point, melting point, freezing point, all are intensive का example. Now और एक चीज observe करो, the ratio of two extensive properties is always an intensive property. The simplest example is mass over volume is density. Mass and volume extensive है, उनका रेशियो डेंसिटी होता है जो इंटेंसिव होता है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव, एक पॉइंट। दूसरी बात, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो एडिटिव होती है, मतलब 1 मोल वाटर प्लस 1 मोल वाटर गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये ऐड होता है। 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर्स, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज। ठीक है, बट अगर मैं 1 मोल का डेंसिटी, 1 मोल ऑफ वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml करूं, वापस एक और मोल उसमें ऐड कर दूं, तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिटिव नहीं होते हैं, इंटेंसिव आर नॉन एडिटिव। Got it? Next, understanding the state variables, state function and path function. Now state variables क्या होता है? कोई भी सिस्टम जो होता है जहां पर एक केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, तो उस सिस्टम के जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स है which are measurable, they are called state variables. For example, कोई भी gaseous system के लिए the most common variables are pressure, volume, temperature and moles, and they are related by the famous ideal gas equation PV equal to nRT. तो किसी भी सिस्टम के जो थर्मोडायनामिक measurable properties होती है, that are called state variables. So here the pressure, volume, temperature and moles are the state variables. ठीक है, now कोई भी thermodynamic system अगर define कर सकता है with respect to these parameters or the state variables, then we are basically defining the state of the system. मतलब वो सिस्टम कौन से स्टेट में है उसको डिफाइन करने के लिए we need to have the information. ठीक है, सो मान लो मेरे पास, लेट्स से आई हैव द आइस क्यूब। ठीक है, तो
तो ये आइस क्यूब जो है दैट इज एट 1 atmosphere pressure occupying a volume of 22.4 liters at a temperature of 273 Kelvin and it's considered for 1 mole. ये अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो जब तक मैं इन वैल्यूज को चेंज नहीं करूं, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज. बट इफ द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 273 to 373 Kelvin, will the parameter change? क्या इनमें से कोई भी पैरामीटर चेंज होगा? Yes. Of course, because now the volume, if you measure, it's going to be much larger because ice जो है वो अब मेल्ट होकर बॉयल हो चुका है एंड उसके वेपर्स बन चुके हैं. तो ऑब्वियसली वो एक ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अंडर द सेम प्रेशर एंड फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स. मतलब अगर मैं इन कोई भी वेरिएबल्स में चेंजेस करूं तो द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू चेंज because now the state will be defined with the different values of the pressure, volume, temperature and moles. या तो सारे चेंज हो सकते हैं या कोई भी एक चेंज हो सकता है. तो let's define the state now with P2, V2, T2 and N2. So ये वाला जो state है, let me call this as initial state and ये वाला जो state आया, let me call it as final state. इसके बीच में और भी कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स आ रहे होंगे जिसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं. जैसे आप टेम्परेचर को 273 से 373 लेके जा रहे हो तो देयर वुड बी डेफिनेटली सम अदर पैरामीटर्स आल्सो चेंजिंग अलोंग विद दैट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. In short, for any system, the variables which are measurable are the state variables. Through the state variables, we can define the state of the system. Unless and until the variables are changed, the system is said to remain in a particular state. ठीक है. अब बात करते हैं दो और प्रॉपर्टीज की, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. अब इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एनालॉजी. ठीक है. मान लो एक हाई राइज बिल्डिंग है ऑफ 20 फ्लोर्स एंड 21st फ्लोर पे टेरेस है. हाई राइज बिल्डिंग है 20 फ्लोर्स का और 21st फ्लोर पे टेरेस है. अब एक बंदा है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो उसका इनिशियल स्टेट है, उसको टेरेस तक पहुंचना है. ठीक है. क्या क्या तरीके हैं टेरेस तक पहुंचने के? व्हाट आर द वेज ही कैन रीच द टेरेस? Take the lift or the stairs. Stairs. टेक द लिफ्ट और द स्टेयर्स. ठीक है. अगर चोर रहेगा तो पाइप चढ़ के भी जा सकता है, जैसा आप मूवीज में देखते हो. अंबानी रहेगा तो हेलीपैड अगर वहां पर अवेलेबल है तो हेलीकॉप्टर से आके भी वहां पर पहुंच सकता है. ग्राउंड स्टेट से उसने हेलीकॉप्टर उड़ाया, ऊपर गया और लैंड करके वो पहुंच गया टेरेस में. अल्टीमेटली उसको टेरेस पे पहुंचना था. तो अलग अलग तरीके हैं, राइट. नाउ इन ऑल दिस केसेस इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग चेंजिंग? जो No. हाइट है बिल्डिंग का, क्या वो चेंज हो रहा है? No. नहीं. हाइट तो उतने का उतना है. ठीक है. तो आई कैन से दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग इज अ प्रॉपर्टी which is dependent only on the initial state, that is the ground level, and the final state, that is the terrace. वो कैसे आया, वो ऑल्टीट्यूड को लेना देना नहीं है. आ रहा है समझ में? So such type of properties are called state functions. नाम में ही देखो, state function is that property which only depends on the initial state and final state. मुझे क्या पड़ा है वो टेरेस पे कैसे आया? स्टेयर्स से चढ़ के आया, लिफ्ट से आया, हेलीकॉप्टर से आया या पाइप चढ़ के आया? टेरेस पे पहुंचने बोला, टेरेस पे आ गया. बराबर. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, इज द वर्क डन इन ऑल द केसेस सेम? No. ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज स्टेयर से चढ़ के आएगा तो ऑब्वियसली काफी सारा एनर्जी कंज्यूम होगा. लिफ्ट से आएगा तो उसका एनर्जी तो कंज्यूम नहीं हो रहा है, लिफ्ट का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. तो ऑब्वियसली द वर्क डन बाय द पर्सन इन डिफरेंट पाथ्स वुड बी डिफरेंट. मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन.
Am I clear on this? Yes, sir. State function is that thermodynamic property which depends only on the initial and the final state. Path function is that thermodynamic property which depends on the path which is taken to reach the final state from the initial state. ठीक है, अब हम अपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, लेट्स से वॉल्यूम. तो मान लो लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और लैब असिस्टेंट ने आपसे बोला कि कोनिकल फ्लास्क में 1 लीटर वाटर भर के आओ. ठीक है, तो ये 1 लीटर का पानी आप कैसे भर सकते हो, कहां से भर सकते हो? नल से. ठीक है, मान लो उसी दिन वो नल में पानी आना बंद हो गया, तो क्या करोगे? बाथरूम. दूसरे नल से. बराबर. या फिर आपके पास जो वाटर बॉटल है, ठीक है, आपने दिलदार होकर वाटर बॉटल का जो 1 लीटर पानी है वो उसमें एम्प्टी कर दिया. ठीक है, मान लो वाटर बॉटल का पानी भी खराब और बाकी सारे नल खराब. ठीक है, और ये कॉलेज एक गांव में है, तो बहुत दूर 1 किलोमीटर चलने के बाद हैंडपंप है, तो हैंडपंप से आपने पानी निकाला और 1 लीटर भर दिया. ठीक है, अल्टीमेटली क्या चाहिए था? कोनिकल फ्लास्क के अंदर 1 लीटर. अब वो कैसे भर के लाए उससे कोई लेना देना नहीं है. That is why volume is a state function which depends on the initial state, which is an empty conical flask, and the final state, which is the 1 liter filled conical flask. लेकिन इसमें जो काम आपने किया अलग अलग पार्ट्स में, वो वर्क जो होगा वो पाथ फंक्शन होगा. जो हीट एनर्जी यूज हुई है आपके बॉडी की, वो पाथ फंक्शन होगी, क्योंकि वो अलग अलग होगी, है ना. बॉडी का कैलोरीज 1 किलोमीटर चलने से ज्यादा बर्न होगा, और वहीं पे बाजू में नल है उसमें से निकाल दिया तो कुछ काम ही नहीं किया आपने, कुछ ज्यादा कैलोरीज ही बर्न नहीं हुई है. ठीक है, तो इन शॉर्ट द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी आर ऑल स्टेट फंक्शंस. तो वहां पर एक YRKT दिया है मैंने, याद रखने का ट्रिक, इट्स PVT नोट्स साथ में लेकर चलो, मैं नोट्स को ही फॉलो कर रहा हूं. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दीज टर्म्स. एंड पाथ फंक्शन इज होमवर्क. होमवर्क मतलब हीट एंड वर्क, HW. समझ में आ गया? Yes. तो नाउ नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स के लॉज अप्लाई करने के लिए वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द सिस्टम हैज टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. नाउ हमने केमिकल इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी पढ़ दिया है. केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज equal and the concentration of the substances become constant. It does not change with time. This is chemical equilibrium. ठीक है, बट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 तरह के इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली अटेन होने चाहिए. इट शुड बी थर्मल प्लस केमिकल प्लस मैकेनिकल. थर्मल मतलब कोई भी तरह का हीट ट्रांसफर या टेम्परेचर का चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वी कैन से द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसके रेट्स इक्वल होने चाहिए, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है. और अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 है, कोई भी तरह का मैकेनिकल वर्क नहीं किया गया है, देन वी से द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंटेनर है जिसके बीच में एक पिस्टन है. अगर यहां पर 2 प्रेशर्स है P1 एंड P2. इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, देन विल देयर बी मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन? ऑफ कोर्स होगा. अरे हाँ, P1 ग्रेटर है P2 से, तो P1 ज्यादा प्रेशर. हाँ, P1 ग्रेटर है तो ये मूव करेगा. ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है, तो ये मूव कब नहीं करेगा? ओनली व्हेन द P1 एंड P2 बिकम्स इक्वल.
In that case, I can say the net force acting on that piston is equal to 0. And that is where physics का thermodynamics comes into picture. Physics में सबसे important होगा mechanical equilibrium को समझना. ठीक है, अपने केमिस्ट्री के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली अटेन होना चाहिए. क्लियर? Yes. ठीक है, तो अब यहां पर मान लो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है which is defined with the state variables pressure, volume, temperature and moles, and the state variables are not changing with time. अगर ये state variables time के साथ change नहीं हो रहे हैं, can I say this system is under equilibrium? हाँ कि नहीं? If the state variables are not changing, can I say it is in equilibrium? Yes. 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 तो let's say ये कोई तो equilibrium state है, I say equilibrium state 1. अब मैंने इन चारों में किसी एक वेरिएबल को अफेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो यहां पर हमने सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द चेंजेस आफ्टर सम टाइम, लेट्स से इट अटेन्स सम न्यू वैल्यूज एंड दे बिकम कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम. So now I can say the system has attained a new equilibrium. Let's say I define it as equilibrium state 2. ठीक है, अब the path which is used to change from one equilibrium state to another is called a thermodynamic process. Process क्या होता है? It's the path by which the equilibrium state is changed into another or a new equilibrium state. अब thermodynamics में ये process अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. And here we come to the next important part, that is thermodynamic processes. ठीक है, now इसको समझने के लिए let's consider the example of the refrigerator. When the door of the refrigerator is closed, tell me it is what type of system? Open, closed या isolated? Closed. Closed. Why not isolated? So some heat is coming out. Correct. Because some heat will be dissipated out. मतलब यहाँ पर ये closed system हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. अब मान लो मैं यहाँ पर चारों तरफ से एक ए डायबिटिक वॉल खड़ा कर दूं. ठीक है, मतलब एक्चुअली जो बैक पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर है वो एक क्लोज सिस्टम है जहां पर हीट निकलती है, लेकिन जो फ्रंट पार्ट होता है या साइड वाला पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट इंसुलेटेड होता है, वहां से हीट बाहर नहीं आ सकती है. ठीक है, तो अज्यूम करता हूं कि मैं चारों तरफ एक ए डायबिटिक वॉल खड़ा कर दूं, तो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम दिस विल बिकम नाउ? ना तो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना मैटर, मतलब ये आइसोलेटेड हो गया. नाउ व्हेन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ओपन, इट्स एन ओपन सिस्टम. सो हमने कुछ चीजें ठंडे करने रखी रेफ्रिजरेटर में, तो डोर ओपन करने के बाद सब हीट अंदर चली जाती है और सबको गर्म कर देती है. बराबर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है. मतलब रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है? टू मेंटेन द कोल्डनेस ऑफ द substances which are placed inside it. मतलब when you open the door of the refrigerator, the challenge to the refrigerator is to maintain the temperature to be constant. बराबर? Yes or no? दूसरा point. When you open the door of the refrigerator, what happens to the surroundings temperature? क्या वो warm हो जाता है या cold हो जाता है? Cold. Cold. ऐसा नहीं होता है.
आपको ठंडा लगता है क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई था और रेफ्रिजरेटर से जो हीट निकल रही है वो कम है, इसलिए कोल्ड लगता है। जब रेफ्रिजरेटर ओपन करते हैं ना तो इट ट्राइज टू थ्रोज अवे द हीट फ्रॉम द मटेरियल्स व्हिच यू हैव केप्ट इनसाइड। आपने मान लो एक कोल्ड ड्रिंक जो हाई टेम्परेचर पे था वो ठंडा करने रखा, तो ठंडा तो हो गया लेकिन उसकी हीट जो है वो तो बाहर निकलेगी कि नहीं, या तो वो डिसिपेट होगी या तो जब रेफ्रिजरेटर ओपन करोगे बाहर आएगी। मतलब व्हेन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ओपन एक्चुअली द सराउंडिंग बिकम्स वार्मर। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है। सराउंडिंग वार्म होता है, आपको ठंडा लगता है क्योंकि आपका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो ज्यादा है, ठीक है। बट सिंस हीट इज थ्रोन आउट द सराउंडिंग्स बिकम वार्मर, Sir, if three ठीक heat है। is thrown out, then why don't we keep on opening the fridge pura din every 5 minutes? तो जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है अगर पूरा दिन ओपन करोगे तो सराउंडिंग का हीट अंदर नहीं जाएगा और वापस जो ठंडा किया वो गर्म नहीं हो जाएगा। व्हाट इज द समझ पर्पस ऑफ गया। यूजिंग द फ्रिज देन? स्टोर इट इन अ वार्डरोब। ठीक है। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में पहले टाइप का प्रोसेस है आइसोथर्मल। अब नाम से ही समझ में आता है, आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच द temperature remains constant. So delta T will be equal to 0. Now, when the temperature is constant, the internal energy associated with the system. अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होता है आगे बताऊंगा, बट याद रखना जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई या कुछ बुक्स में डेल्टा यू से इंडिकेट करते हैं, दोनों करेक्ट है। डेल्टा ई देखो या डेल्टा यू देखो, थर्मोडायनामिक्स में इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, वो भी चेंज नहीं होता है। यानी जो इंटरनल एनर्जी है यू, दैट्स एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब एज द टेम्परेचर चेंजेस इंटरनल एनर्जी विल चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान दो एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। मान लो एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड उस रिएक्शन का टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन, ठीक है। तो हमने कुछ उसको आइस वाटर बाथ में रखा सो दैट उसका जो भी टेम्परेचर मेंटेन कराना है वो हमने मेंटेन करवाया, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए सिस्टम ओपन होना चाहिए। इट कांट टेक प्लेस व्हेन इट इज अ क्लोज्ड और एन आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाई? बिकॉज अगर टेम्परेचर को मेंटेन करना है और सिस्टम के अंदर मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रैप हो गई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो हीट है सिस्टम से बाहर निकलनी जरूरी है कि नहीं, इनटू द सराउंडिंग्स? यस और नो? That is why for an isothermal process the system needs to be open। मतलब एक कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो जब तक ये हीट निकलेगी नहीं तब तक सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा ना, ठीक है। इसीलिए तो डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो ओपन करते हैं उसको हीट बाहर फेंकना पड़ेगा, या तो बैक साइड से डिसिपेट करके या फिर जब आप ओपन करते हो तब। Either ways the heat needs to be thrown out, then only the temperature will be maintained। मतलब यहाँ पर जो heat है indicated by letter Q, that shouldn't be equal to 0, ठीक है। सिमिलरली कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब सिस्टम की हीट को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता क्योंकि हमने टेम्परेचर मेंटेन करवाया है, तो वो सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। In short, exo ho ya endo, the heat transfer between the system and surrounding needs to be allowed। That's the reason isothermal process takes place in an open system। Similarly, adiabatic process, जिसमें adiabatic wall होना चाहिए, उससे ये समझ में आता है that the type of the system needs to be isolated, ठीक है। तो इस केस में द हीट एक्सचेंज और द एनर्जी एक्सचेंज
between the system and surrounding is not allowed. मतलब एक थर्मोस फ्लास्क के अंदर मान लो एक केमिकल रिएक्शन आपने करवाया, ये एक थर्मोस फ्लास्क है और उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन मान लो एक्सोथर्मिक है, so it will release the energy. Now can this energy or the heat which is released go out of the system? अरे गधे लोग बोलो कुछ। हमने ए डायबिटिक वॉल रखा है, तो No. एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर इसके No. अंदर हो रहा है तो ये हीट बाहर नहीं जा सकता, तो उसकी वजह से क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो मैं बाहर से तो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूं, तो इस केस में सिस्टम के अंदर का हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर सिस्टम के अंदर का हीट एब्जॉर्ब हो गया तो टेम्परेचर इस केस में Decrease. डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब ए डायबिटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस in which the heat exchange is not happening between the system and the surrounding, but the temperature has to change, and that is why the internal energy of the system will also change, ठीक है। Then if a reaction is carried out in a closed container, मान लो ये conical flask closed है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है but matter is conserved, and because it's a closed container the volume is also constant. Such reactions which take place in a closed container are called isochoric processes. Delta V is equal to 0. Any reaction taking place in a closed container is isochoric. ये equilibrium में भी word बताया था मैंने, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस को हम बॉम कैलोरीमीटर भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक एपरेटस है जिसके थ्रू हम अलग अलग थर्मोडायना, क्या लिखा है मैंने, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। So it's an apparatus which is used to measure various thermodynamic parameters by keeping the volume constant, ठीक है। And if the chemical reaction which are carried out in the laboratory are taking place in an open container, they are at the constant atmospheric pressure. सारे reaction same atmospheric pressure के अंदर होते हैं, that is why those processes are called isobaric processes. Isobaric processes, delta P is equal to 0. Krishna? Krishna Zariwala, Yes, sir. have you slept or what? No, sir. Because I can see that you are sleeping, meaning actually I can't see, so I can assume that you are sleeping. Fine, good enough. So these are the 4 important types of processes. Now have a look at this very important graph. It's plotted for pressure versus the volume, ठीक है। तो if I draw a line parallel to the volume axis, मतलब I'm keeping the pressure to be constant, so that will be representation of an isobaric process. If I'm drawing a vertical line parallel to the pressure axis, meaning I'm maintaining the volume constant, meaning this will be for an isochoric process. Now isothermal process में when the temperature is constant, we know according to Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. Boyle's नाम तो सुना होगा। Pressure is inversely proportional to volume, and when pressure and volume are inversely proportional, it will have a graph like this. तो ये हो गया आपका isothermal का ग्राफ। ए डायबिटिक में सिमिलर ग्राफ आता है, लेकिन उसका जो स्लोप है वो स्टीपर होता है। क्यों होता है उसका भी रीजन है, बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो आइसोथर्मल एंड ए डायबिटिक हैव द सिमिलर ग्राफ, बट ए डायबिटिक का स्लोप इज स्टीपर। व्हाई? बिकॉज द स्लोप ऑफ ए डायबिटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, where gamma is called Poisson's ratio.
and they have the values always greater than 1, which is defined for different atomic systems, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, अलग अलग सिस्टम के लिए गामा अलग होता है, लेकिन हर बार वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल है तो स्लोप ऑफ ए डायबिटिक्स स्टीपर होगा आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये चारों प्रोसेसेस को जनरली वी कैन डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू पीवी रेज टू एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, ये फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज फिजिक्स की यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता दूंगा। तो व्हेन physics का thermodynamics will get started, 50% of the things will be known to you, must be known to you, if at all you pay attention and understand the stuff. Conditions apply. Anyways, so अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो n को 0 डाल दूंगा, तो v रेज टू 0 1 हो गया, p कांस्टेंट हो गया। मतलब इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइसोबारिक के लिए n इज इक्वल टू 0। अगर मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो आई नीड टू इंक्रीज दिस वैल्यू टू सच अ हाई वैल्यू दैट प्रेशर उसके सामने नेग्लिजिबल हो, तो n मुझे इंफिनिटी लेना पड़ेगा, v रेज टू इंफिनिटी, अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, नाउ यहाँ पर p जब इनवर्स टू v होता है तो हमें पता है pv इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर v शुड बी रेज टू 1, तो n की वैल्यू 1 आ गई। और यहां पर ए डायबिटिक में n की वैल्यू गामा के बराबर होती है, और वही स्लोप के लिए भी आता है रिलेशन। So these are the 4 important graphs related to the polytropic processes. And these are various graphs which are given with respect to different y versus x. जैसे आइसोथर्मल में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, we know it's a rectangular hyperbola. वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू v एक्सिस आएगा, p वर्सेस t होगा तो भी सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, वैसे ही ए डायबिटिक के लिए p वर्सेस v हो या v वर्सेस t या p वर्सेस t, सब में गामा की वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व ही आएगा। ए डायबिटिक के कर्व्स आइसोथर्मल से डिफर करते हैं। ठीक है, पीवी में ये स्टीपर होता है, v वर्सेस t और p वर्सेस t में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। आइसोकोरिक में v कांस्टेंट होने के लिए लाइन पैरेलल टू p एक्सिस या लाइन पैरेलल टू t एक्सिस, बट p वर्सेस t की अगर बात करें तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, गैस लॉज है ये। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। आइसोबारिक में एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमें पता है v इज प्रोपोर्शनल टू t, तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ का ग्राफ आएगा जब v वर्सेस t की बात करेंगे। तो सब ग्राफ अपने आप में बहुत सिंपल है एंड गैस लॉ से रिलेटेड है, नथिंग मोर इन दिस। खाली ए डायबिटिक में ध्यान रखना v वर्सेस t और p वर्सेस t में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, बाकी में दिमाग यूज नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। Now next, coming to the other type of processes, reversible, and उसके सामने I will also compare irreversible process. Reversible versus irreversible process. Now इसको समझने के लिए consider the example of अखाड़ा। अखाड़ा दंगल है ना, आमिर खान की मूवी देखी होगी सुल्तान मुल्तान, सलमान खान की मूवी देखी होगी। ठीक है, तो दंगल का कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम्पल, और उसमें लेट्स से देयर आर टू रेसलर्स हु आर फाइटिंग इन द बाउट, एंड यहां पर 55 kg कैटेगरी का कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस केस में दोनों जो रेसलर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दे शुड बी इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, बट ऑन अ पर्टिकुलर डे ये वाले टीम का जो रेसलर है ये इंजर्ड हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। ठीक है, अब कोच को कंपटीशन तो करवाना था, तो कोच के पास 55 kg कैटेगरी का कोई बंदा अवेलेबल नहीं था, तो उसने सोचा चलो कंपटीशन करना है तो मैं यहाँ पर एक लोअर कैटेगरी वाले बंदे को हाइपोथेटिकली भेज देता हूँ। ठीक है, तो 35 kg वाला कैटेगरी यहाँ पर रेसलिंग करने आ गया। अब बताओ, विदाउट एनी मिरेकल्स
जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो, विदाउट एनी मिरेकल्स, द चांस ऑफ विनिंग इज हायर फॉर विच रेसलर? द फर्स्ट वन, मतलब ये वाला साइड से जो 55 केजी की कैटेगरी से था। दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम टू एक्चुअली विन द कंपटीशन इज वेरी हाई और वेरी माइन्यूट। हाँ, वेरी माइन्यूट। मतलब ये तो सोचेगा अरे 35 केजी वाला कैटेगरी आया, खुश हो गया भाई, जीतने का तो 100% मेरा ही चांस है, और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि भाई एक हाथ लगाऊंगा तो भी ये गिर जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली द probability of this person winning the competition is 100% guaranteed without any miracles। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोच को ना बहुत गुस्सा आ गया, अरे 35 केजी वाले को ऐसा ही पटक दिया। ठीक है, तो उसने किसी 45 केजी वाले कैटेगरी को यहाँ पर कंपटीशन में इंक्लूड किया। तो अब यहाँ पर कंपटीशन वापस हुआ। अगेन द चांसेस ऑफ विनिंग इज हायर फॉर होम, 55 और 45? 55. 55। लेकिन अब जो काम करना पड़ेगा टू एक्चुअली विन द कंपटीशन, विल इट बी हायर देन द प्रीवियस? हाँ ना, अब तो हाथ लगा के ये डायरेक्टली जीत नहीं पाएगा ना, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा, रेसलिंग वेसलिंग ढंग की करनी पड़ेगी, तभी तो ये जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली तो ये हार के आ गया, तो कोच को वापस गुस्सा आ गया, और 2 दिन में अपना जो 55 केजी वाला कैटेगरी वाला बंदा था ना, ठीक हो के आ गया। अब इसको बहुत खुन्नस था। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हायर फॉर होम? Either it is equal हाँ? for both या फिर it's higher for the first guy. इट्स इक्वल, मतलब हम कोई मिरेकल की बात नहीं कर रहे भाई, इसको गुस्सा है तो चलिए जीत ही जाएगा। लास्ट में होता है ना मूवीज में, भाई गुस्सा आता है तो सामने वाले को कोई भी हालत में हराना ही है, वो विलन हारना ही चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। ये मरने की हालत में है ना, तो भी वो जीतेगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एक अच्छी खासी सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द रेसलर्स टू विन द कंपटीशन, बराबर। एंड नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क which is to be done by this particular person to win the competition is much higher and should be equal to its maximum capacity as compared to the earlier 2 cases। 35 वाले में कुछ काम नहीं किया, 45 वाले में इसने थोड़ा बहुत काम किया, अब 55 वाला सामने आएगा तो ये रिलैक्स तो नहीं होगा ना। He has to give his maximum 100%, then only he will win the competition। हाँ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब मान लो 55 की जगह यहां पर एक 65 वाले कैपेसिटी, 65 वाले कैटेगरी को भेज दिया, अब बाजी पलट जाएगी। हाँ कि नहीं? Yes, sir. 65 वाला जीतेगा। समझता है ये? बहुत सिंपल एनालॉजी दे रहा हूं टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली दिस 55 केजी कैटेगरी वाला जो बंदा है ना, दैट इज आवर सिस्टम। अब सुनो ध्यान से, और जो सामने अपोजिंग पोजीशन पे है ना, वो अपना सराउंडिंग है। ठीक है, तो जब तक मैंने सराउंडिंग में ज्यादा हाई कैटेगरी का बंदा नहीं भेजा, मतलब यहां पर 35 था, 45 था, तब तक was the work done by the system efficient? No. No। यहां पर एज गुड एज मैं बोल सकता भाई सिस्टम कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग पे कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब 35 से 45 हुआ तो थोड़ा काम करने लगा, 45 से 55 आया तो उसको अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी, और अगर यहां पर 65 वाला बंदा आ गया तो बाजी पलट जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का फोर्स है ना, इसको हम इंटरनल प्रेशर से डिफाइन करते हैं। लेट्स से गैसियस सिस्टम है तो उसका कुछ प्रेशर होगा, तो दैट इंटरनल प्रेशर इज डिफाइंड बाय
जस्ट P, और जो सराउंडिंग है ना उसको हम अपोजिंग फोर्स बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज P एक्सटर्नल। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल करवाना है, इरिवर्सिबल मतलब कभी भी ये रिवर्स ना हो, उसके लिए what should be the difference between the P and the P external? ये बाजी अगर पलटनी नहीं चाहिए तो P यानी जो 55 kg वाला कैटेगरी है उसका influence over the surrounding should be always higher or lower? Higher. Higher. मतलब mathematically irreversible process में the P should be much greater, much greater than the P external. मतलब under no scenario the process can be reversed in this case. हाँ कि नहीं? Yes. अरे गधे बच्चों, Yes. समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, तो डिफाइन करते हैं अब with the language which is given. Irreversible process is a type of process where the difference between the internal pressure and the external pressure is much larger, such that a small increase in the opposing force or the external pressure is not going to reverse the process. मतलब मान लो ये 55 ही है और ये 45 वाला है, अब 45 से मैं एक एक किलो बढ़ाते जाता हूँ, 46 वाले को भेजा, 47 वाले को भेजा, 48 वाले को भेजा, 48.1 वाले को भेजा, 48.2 वाले को भेजा, क्या प्रोसेस रिवर्स होने वाला है? नहीं। नहीं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा है कि छोटा छोटा चेंजेस कोई असर नहीं करने वाला है। मतलब द डिफरेंस बिटवीन द P and the P external is so very large that a small increase in the external pressure is not going to reverse the process. Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes. अब वापस वही कंसिडर करते हैं कि ये अपना सिस्टम है और ये सराउंडिंग है और दोनों इक्वल कैपेसिटी वाले हैं, 55 किलो 55 किलो, दोनों 55 वाले। ठीक है, तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम। बट अगर मैं ये 55 वाले को 55.1 कर दूं और ये 55 है, तो ये उसके ऊपर भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बोलना। No, sir. Sorry. 55.2 करूं तो No. क्यों नहीं पड़ेगा? इससे तो ज्यादा है ना। But अब सोचो, difference is very large. हाँ, तो डिफरेंस अगर कम है तो प्रोसेस रिवर्स होने के चांसेस है कि नहीं है? बाजी पलट जाएगी कि नहीं पलटेगी, वो बोलो। नहीं। Chances है। चांसेस है ना, ना कैसे बोल सकते हो? 55.2 इज ग्रेटर देन 55, मतलब यहां पर बाजी पलटने के अब ये रेसलिंग का एग्जैक्टली मत सोचो, ये तो मैंने जस्ट एनालॉजी दिया। अब ये एग्जांपल आप सोचो विथ रिस्पेक्ट टू सम गैस विच इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर एंड देयर इज एन एक्सटर्नल प्रेशर विच इज गिवन बाय द पिस्टन। ये P एक्सटर्नल है और ये P है, तो मुझे बताओ ये पिस्टन अपनी पोजीशन पे रहेगा ओनली इफ P एंड P एक्सटर्नल इज, अरे Equal. भाई ये पिस्टन अपनी पोजीशन पे रहेगा ओनली इफ P एंड P एक्सटर्नल इज Equal. इक्वल। दोनों का मान लो 1 एटमॉस्फेयर है। अब मैं 1 एटमॉस्फेयर की जगह इस एक्सटर्नल वाले को 1.05 करूं, क्या यहां पर पिस्टन नीचे जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. ऑब्वियसली जाएगा।
ठीक है, और कब तक जाएगा? टिल द टाइम द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल प्रेशर्स अगेन बिकम इक्वल। मतलब यहां पर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का कंडीशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द P and the P external should be very very small. P should be slightly greater than the external, slightly greater, such that अगर मैं एक्सटर्नल को थोड़ा भी बढ़ा दूं तो मेरा प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, मतलब बोलने की बात यह है कि मैंने इसको 1.05 पे रखा है और यहां पर मैंने 1 पे रखा है। ठीक है, अब अगर ये 1.1 कर दो तो बाजी पलट जाएगी और प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा चेंज करने पर यहां पर प्रोसेस जो है वो पलट जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस इज बेसिकली दैट प्रोसेस वेयर द सिस्टम का प्रेशर एंड द सराउंडिंग का अपोजिंग फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर जो भी आप बोलो, द डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, सच दैट अगर अपोजिंग को थोड़ा बहुत भी बढ़ाया तो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। बट ऐसा इरिवर्सिबल में हो रहा था क्या? 45 से 45.1 किया तो रिवर्स हुआ? अरे होगा क्या? No. यार गधे लोग हो तुम लोग यार, शिट। होगा क्या रिवर्स? इरिवर्सिबल में 45 को 45.1 किया, विल द प्रोसेस गेट रिवर्स्ड? Yes. हो जाएगा? No, 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 नहीं होगा. भगवान भला करे आपका। छोड़ दो केमिस्ट्री, साइंस से ड्रॉप कर लो, तुम लोग लायक नहीं हो। चलो डेफिनेशन पे आते हैं रिवर्सिबल के। एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट एवरी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स यानी सिस्टम का internal pressure is only infinitesimally greater than the opposing force। मतलब P जो है वो छोटू सा greater है than the P external and the process can be reversed by a slight increase in the opposing force is called a reversible process। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये ज्यादा ना समझो तो भी चलेगा, थोड़ा फिजिक्स के रिलेटेड है, फिजिक्स में ये थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। So for a process to be reversible, there must not be any dissipative forces and the system should be in a quasi-static state। quasi-static state मतलब हर पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 55-55 में इक्विलिब्रियम था, 55.1 किया तो फटाक से यहां पर चेंज हुआ और सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम पे आ गया। 55.2 किया, वापस चेंजेस हुआ और फटाक से इक्विलिब्रियम पे आ गया। मतलब यहां पर जो वर्क होगा ना, दैट विल बी डन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में होगा। लेकिन जब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं ना, एक ही स्टेप में वो प्रोसेस हो जाता है। जैसे 55 वाले को 45 वाले को हराना है तो एक पंच दिया, 45 वाला गिर गया एंड ही विंस द कंपटीशन। दैट्स हाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज, राइट? सो इट हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, और रिवर्सिबल जो है ना, दैट्स अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। आइडियली ये हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। हर स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे होता है, हर स्टेप पे। ठीक है, तो dissipative forces are forces of such nature that energy is lost from a system when the motion takes place। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन की वजह से dissipative forces होते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल के केस में ना डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए और सिस्टम हमेशा क्वाजी स्टैटिक स्टेट में रहना चाहिए। फाइन। Yes. Now the features of reversible process. Point 1,
The driving and opposing force are only infinitesimally different from each other. Infinitesimally different होने चाहिए. The process can be reversed at any point by making छोटा सा change in the condition, मतलब external को छोटे से value के साथ बढ़ा दो. Process जो है that takes place in infinite number of steps. और हर step पे the system is attaining the mechanical equilibrium. And reversible process में हमेशा maximum work होता है. इसीलिए तो Haber's process, contact process में reversible reaction था जिससे the yield of ammonia, yield of sulfur trioxide was maximized. कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल होता है उससे हम मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं. इसीलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस को लेकर लार्ज स्केल प्रिपरेशंस करते हैं. हेबर्स देख लो, कॉन्टैक्ट देख लो, एंड many other large scale processes which are done in the organic or inorganic chemistry with regards to chemical reaction, they were reversible. जहां पर हमने LCP को भी अप्लाई किया था to shift the equilibrium on the right. अगर आप कोरिलेट कर रहे हो तो बहुत इजीली ये समझ में आएगा. And the process takes place so slowly that the system is always in temperature pressure equilibrium with its surroundings. मतलब ये हमेशा एक थर्मल इक्विलिब्रियम भी रहता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी रहता है. मतलब आइडियली ये एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का केस हो गया. दूसरा, a process which is not reversible is called irreversible, and for irreversible process the P should be much greater than the P external such that इसको छोटे मोटे से इंक्रीज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोसेस रिवर्स नहीं होने वाला है. ठीक है. और सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस होते हैं. नेचुरल प्रोसेसेस मतलब वाटर फ्लोइंग इन अ डैम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. A current flows from positive to negative, a higher potential to lower potential. Heat always flows from hot body to cold body, कभी भी उल्टा नहीं होता है. तो सारे नेचुरल प्रोसेसेस irreversible होते हैं और अपने आप होते हैं. Spontaneous is something which is taking place on its own. Clear? So in today's session, what we have understood is the different parameters which we will be using in thermodynamics, जैसे system, surrounding, boundary, extensive, intensive, state variable, state function, path function, process. फिर अलग टाइप के processes जिसमें isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic, reversible and irreversible को हमने समझा. रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट सेशन इसी का कंटिन्यूएशन होगा. तो बेटर यू रिवाइज द स्टफ. और एक चीज इनके अलावा ना एक साइक्लिक प्रोसेस भी होता है. साइक्लिक मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया. मतलब इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, घूम फिर के आप उसी पॉइंट पे आ जाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है. तो साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंजेस होता है थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में, दे आर ऑल इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पर कोई भी एक्चुअली चेंजेस टेक प्लेस नहीं होता है. मतलब देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन एंथैल्पी, नो चेंज इन टेम्परेचर, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो रहा है. तो यहाँ पर अगर P1 P2 के बात करूं तो वो इक्वल होगा तो डेल्टा P0. टेम्परेचर की बात करूं T1 T2 वो इक्वल होगा तो डेल्टा T0. मतलब ऑल दीज पैरामीटर्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू 0 फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. फाइन. नोट्स में अप टू दिस आप रिफर करोगे, अच्छे से समझ लोगे एंड देन ऑल्सो स्टार्ट विद द MCQs फ्रॉम द नोट्स. यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्कस द MCQs साइमल्टेनियसली. जैसे टॉपिक खत्म हुआ नेक्स्ट सेशन में उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ MCQs एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट. ठीक है. तो बेटर यू आल्सो स्टार्ट विथ मी सो दैट जैसे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग एंड MCQ दोनों साइमल्टेनियसली होगा एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर वेरी इजीली विथ अंडरस्टैंडिंग. होप यू फॉलो व्हाट आई हैव सेड. सेशन में तो फॉलो नहीं करते, पता नहीं ऐसे फॉलो करते हो कि नहीं. चलो दैट्स इट. आई एम डन.